Today we will discuss about one of the most important stock exchange of our country, and that is National Stock Exchange. Students, we will discuss this topic in 6 important parts. In the first part, we will discuss about when NSE was established, when it was recognized as a stock exchange, and when it started functioning as a stock exchange in our country. In the second part, we will discuss about the promoters of NSE. कौन-कौन NSE के promoters थे. In the third part, we will discuss about the important objectives of NSE. कौन-कौन से ऐसे objectives थे या NSE को बनाने के पीछे क्या objectives रखे गए थे. In the fourth part, we will discuss about the board of directors of NSE. In the fifth part, we will discuss about the various index prepared by NSE. And in the last segment, that is sixth part, we will discuss about various market segments of NSE. यानी NSE कितने market segments में, कितने segments में divided है, हर segment में कौन कौन participate करता है या कर सकता है, और उसके लिए eligibility norms क्या है. किसी भी market में participate करने के लिए वहां पे जो भी व्यक्ति participate करेगा उसके लिए eligibility norms क्या है. तो इस 6 पैरामीटर्स पे हम लोग NSE को समझते हैं. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. Number 1, basics about NSE. Students, basically NSE was established in November 1992 and NSE is merely a popular name. The official name is NSEIL, that is National Stock Exchange of India Limited. Students, NSE was established on the recommendations of a high-powered committee headed by the former UTI chairman M.J. Fairwani. Basically, a committee was established by the central government and it was asked from the committee members to suggest the central government regarding certain measures so that new stock markets may be established in our country. केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को कहा कि आप हमें कुछ मेजर सजेस्ट करिए, कुछ हमें तरीका बताइए जिससे नए स्टॉक मार्केट्स को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस या एस्टैब्लिश कर सकें. एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमेटी हेडेड बाय मिस्टर एमजे फेरवानी, NSE was established in November 1992. But it was granted as a recognition of stock exchange in the year 1993. बन तो ये 92 में ही गया था, लेकिन स्टॉक मार्केट की पहचान इसे जो मिली that was in 1993. That means in the year 1992 when it was established, it was merely a public limited company. In the 1993, it was recognized as a stock exchange, but it started functioning as a stock exchange in our capital market from 1994. तो तीनों डेट याद रखिएगा. नवंबर 1992 में ये इस्टेब्लिश हो गया था एक कंपनी के रूप में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में. 93 में इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज बाय सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956 एंड फाइनली इन 1994 इट स्टार्टेड फंक्शनिंग एज ए स्टॉक मार्केट इन आवर कंट्री. नाउ द सेकेंड पार्ट, हु आर द प्रोमोटर्स ऑफ NSE. NSE को बनाने वाले प्रोमोटर्स या बेसिकली जो इस्टेब्लिश करने वाले प्रोमोटर्स कौन है. Some of the important promoters of NSE are IFCI, LIC, GIC, IDBI, State Bank of India, ICICI and other financial institutions. बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक ICICI को छोड़ दिया जाए then majority or most of the promoters, they are basically the public sector enterprises. And why? Because NSE was basically established on the recommendations of central government. That's why when the central government recommended, the public sector enterprises came forward and established NSE to counter the dominance position of Bombay Stock Exchange in our financial market. ये हम लोग कह सकते हैं कि NSE को बेसिकली जो एस्टैब्लिश किया गया था और ऐसे प्रोमोटर्स के द्वारा किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए ही किया गया था. सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रोमोटर्स दे आर बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSE. व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है. स्टूडेंट्स, देयर वर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स.
जब एनएससी को बनाया गया था तो 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द मार्केट, क्योंकि 1992 की पोजीशन को याद रखिए, वहां पे केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही एक था जो बड़ा स्टॉक मार्केट था भारत में, एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस उसकी रैंकिंग बहुत डाउन थी। बॉम्बे स्टॉक मार्केट जो कि ब्रोकर्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता था उस समय, वो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी ये दोनों के टर्म्स पे उसकी रैंकिंग काफी डाउन थी। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था टू ब्रिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस द सेटलमेंट पीरियड और सेटलमेंट साइकिल। आपको सेटलमेंट साइकिल पता होगा, जिस दिन ट्रेडिंग की जाए और सेटलमेंट फाइनल, उसकी साइकिल पीरियड क्या है, एक रोटेशन वेव में जो है उसका पीरियड क्या होता है। तो पहले जब एनएससी बना उस समय तक T+7 का कॉन्सेप्ट चलता था, यह दिन ट्रेडिंग डे प्लस 7 डेज मान के चलिए। आज के डेट में आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएससी इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू T+2। आज के डेट में जो कॉन्सेप्ट है वो T+2 कहा गया है, यानी काफी हद तक इंप्रूवमेंट आई है। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा की जाए। तो एनएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि एनएससी के हितों की भी रक्षा की जाए। तो इन 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की वजह से एनएससी को एस्टैब्लिश किया गया। नाउ द 4th पॉइंट, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनएससी। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं, एंड हाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनएससी आर डिफरेंट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर स्टॉक मार्केट्स। पोजीशन को याद रखिएगा, व्हेन एनएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992, उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनएससी के वर्सेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर्स, उसमें भी खासकर बॉम्बे स्टॉक मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर देखा जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, दैट वाज बेसिकली डोमिनेटेड बाय द ब्रोकर्स। जो ब्रोकर्स वहां के मेंबर हुआ करते थे वही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी डोमिनेट करते थे। बट व्हेन एनएससी वाज एस्टैब्लिश्ड तो यहां पे कॉन्सेप्ट को बदल दिया गया। इसकी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए एक फिगर को हम लोग देखते हैं, इस फिगर की सहायता से। यहां देखिए, एनएससी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 मेंबर्स वेर बेसिकली द नॉमिनीज ऑफ सेबी। सेबी के 3 महत्वपूर्ण नॉमिनीज को यहां पे पार्ट दिया गया। 2 were eminent persons. Eminent persons means persons belonging to different fields, the experts of different fields. वो किसी कंपनी के सीईओ हो, किसी बड़े बैंकिंग के अधिकारी हो, कोई फाइनेंस का स्पेशलिस्ट पर्सन हो, कोई फाइनेंशियल मार्केट्स का या फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपर्ट हो, कोई टैक्सेशन का हो, कोई अकाउंट हो, मीन्स 2 eminent persons who were basically the experts in their field. उनको यहां पे जगह दिया जाता था। 2 persons were from NSE मैनेजमेंट से 2 लोगों को, and 8 persons और 8 board of directors, they were basically the nominees of shareholder institutions, जो promoters थे, जैसे IDBI, LIC, GIC, IFCI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके 8 रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि ये प्रोमोटर थे तो इनके 8 रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह दी गई। स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखिएगा, एनएससी जब पहली बार आई तो उसने अपने बोर्ड में बाहरी व्यक्तियों को भी जगह दिया। अदरवाइज द स्टॉक मार्केट्स, स्पेशली द इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली बॉम्बे स्टॉक मार्केट, इट वाज फुल्ली डोमिनेटेड बाय द ब्रोकर्स। वो केवल ब्रोकर्स को ही जगह देता था और जिससे ट्रांसपेरेंसी का लेवल काफी हद तक डाउन हुआ करता था, या वो केवल अपने हितों का ध्यान रखते थे, इन्वेस्टर्स के हितों का उतना ध्यान नहीं रखते थे। बट एनएससी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बाहरी लोगों को भी जगह दिया। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एनएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द फर्स्ट बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड बाय एनएससी, इट वाज फार बेटर एज कंपेयर्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर्स। नाउ इन द 5th सेगमेंट वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय एनएससी। कई इंडेक्स होते हैं जो बेसिकली मार्केट के ट्रेंड को बताते हैं, या जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है उस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में उसका ट्रेंड क्या है, वेदर इट इज मूविंग ट्रेंड, वेदर इट इज डाउनवर्ड ट्रेंड, ट्रेंड क्या है उसको वो लोग बताते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर जो यहाँ पे इंडेक्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो है, सबसे पहला जो एनएससी का सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है दैट इज निफ्टी। इसका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, निफ्टी। निफ्टी NIFTY
निफ्टी दैट इज बेसिकली नेशनल 50, और इसका ये भी एक पॉपुलर नेम है निफ्टी। इसका ऑफिशियल नेम है S&P CNX निफ्टी। S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, CNX स्टैंड फॉर C फॉर क्रिसिल CRISIL, N स्टैंड्स फॉर NSE एंड X फॉर इंडेक्स। दैट मीन्स स्टैंडर्ड एंड पुअर, क्रिसिल, NSE, इंडेक्स, निफ्टी। ये इसका फुल नेम है या ऑफिशियल नेम है। और इसमें बेसिकली जो द टॉप 50 सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड विथ NSE, उनकी शेयर्स को या उनकी सिक्योरिटीज का ये ट्रेंड बताता है निफ्टी। दूसरा है डिफ्टी, DIFTY, या कहीं कहीं पे इसे DEFTY भी लिखते हैं। डिफ्टी इज बेसिकली द डॉलर वर्जन ऑफ निफ्टी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके सहूलियत के लिए डिफ्टी का कॉन्सेप्ट आया और वो डॉलर वर्जन में उनको उनकी ट्रेंड को दिखाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो प्रिपेयर किया जाता है दैट इज क्रिसिल 500, CRISIL 500। इसका भी ये पॉपुलर नेम है, ऑफिशियल नेम है S&P CNX 500। ठीक है, और एक लास्ट है निफ्टी जूनियर। जूनियर से यहां पे देखिए क्या मतलब है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स को बताया जाता है या उसके ट्रेंड को। निफ्टी जूनियर में 50 के बाद वाले 50, यानी द सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड एट 51st पोजीशन टू 100 पोजीशन। 51वें पोजीशन पे जो है उससे लेके 100वें पोजीशन तक के इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है या उनकी सिक्योरिटीज के इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें भी होते तो 50 हैं, बट द सेकेंड 50 लॉट, जो पहले 50 उससे निफ्टी, और उसके बाद के जो 50 है यानी 51 से 100 के जो बीच के जो 50 कंपनीज हैं, इनकी शेयर्स की जो ट्रेडिंग या उनके जो ट्रेंड को दिखाया जाता है दैट इज फ्रॉम निफ्टी जूनियर। इसका भी ऑफिशियल नेम है S&P CNX जूनियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्सेस। नाउ द लास्ट सेगमेंट दैट इज मार्केट सेगमेंट, यानी इसमें हम लोग ये देखेंगे कि NSE को कितने मार्केट्स में या कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। इस पर्टिकुलर मार्केट को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, हर सेगमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किसे परमिशन मिली हुई है पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड थर्ड, व्हाट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट इन ईच सेगमेंट। जो भी पार्टिसिपेंट है उसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट क्या है। आइए इसको भी एक हम लोग फिगर की सहायता से समझते हैं। स्टूडेंट्स यहां देखिए, दिस इज द मेंबरशिप एलिजिबिलिटी। नाउ द NSE or this particular market is divided in 3 important segments. That is, first is WTM, wholesale debt market. Second one is capital market and third one is futures and options market. यानी NSE को बेसिकली 3 मार्केट्स में डिवाइड किया गया है, होलसेल डेप्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट और तीसरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट। अब यहां देखा जाएगा कि तीनों मार्केट में ये तीनों सेगमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी। पहले देखते हैं होलसेल डेप्ट मार्केट। यहां पे लीगल कंस्टिट्यूशन या पार्टिसिपेंट कौन कौन है, बैंक्स, द कॉर्पोरेट बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स। यानी बैंक्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं होलसेल डेप्ट मार्केट में। यहां ध्यान रखिएगा, यहां कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, यानी इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स दे आर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन होलसेल डेप्ट मार्केट ऑफ NSE। नाउ कैपिटल मार्केट, यहां कौन पार्टिसिपेट करता है। NSE के कैपिटल मार्केट में इंडिविजुअल्स कैन पार्टिसिपेट, द रजिस्टर्ड फर्म्स दे कैन पार्टिसिपेट, कॉर्पोरेट बॉडीज दे कैन पार्टिसिपेट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में सेम एज CM, दैट मीन्स इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड फर्म्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन पार्टिसिपेट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट ऑल्सो। अब देखते हैं कि ये जो पार्टिसिपेंट है इनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या निर्धारित की गई है NSE के द्वारा। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, NSE जब आई थी उसके पहले तक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स वाज ओनली एंड ओनली कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, बट NSE जब आई तो उसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी ध्यान दिया
कि केवल कैपिटल एडिक्वेसी नहीं, केवल एडिक्वेट अमाउंट में कैपिटल ला दे और आप पार्टिसिपेट करें, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी इसने ब्रिंग किया था या इंट्रोड्यूस किया था। देखिए क्या है, एनएससी के होलसेल डेब्ट मार्केट में अगर कोई बैंक है, कॉर्पोरेट बॉडी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या किसी प्रकार की संस्था है, तो उसके कम से कम 2 फुल टाइम डायरेक्टर्स को कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी किस फील्ड में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी ये जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, इनके 2 फुल टाइम डायरेक्टर्स को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में, तभी ये लोग यहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कैपिटल मार्केट्स में जब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कम से कम 2 डायरेक्टर, अगर कोई कंपनी है या कॉर्पोरेट बॉडी है तो उसके 2 डायरेक्टर के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कम से कम उस फर्म के 2 पार्टनर चाहे जितने हो उसमें, उसके कम से कम 2 पार्टनर के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका सोल प्रोप्राइटर, उसके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी यहां विदाउट एक्सपीरियंस के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में सेम एज कैपिटल मार्केट, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में अगर कोई सोल प्रोप्राइटर काम करना चाहता है तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो 2 पार्टनर्स के पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है तो उसके 2 डायरेक्टर्स के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। Now, besides these educational qualification norms, there is one norm that is capital adequacy norms. This is the most important norm for any stock market. स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पैसा तो जरूर आपको वहां पे लेके जाना होगा या एज डिपॉजिट्स वहां पे सबमिट करना है। होलसेल डेब्ट मार्केट में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है देन द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म इज 20 मिलियन रुपीज। 20 मिलियन रुपीज सबमिट करके ही आप होलसेल डेब्ट मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो या वर्क कर सकते हो। When we talk about capital markets, then the individuals and the partnership firms, they have to submit 7.5 million rupees. And the corporate bodies, if they want to participate in the capital market, they have to submit 10 million rupees. यानी अगर इंडिविजुअल्स या फर्म्स हैं तो 7.5 मिलियन रुपीज और कॉर्पोरेट बॉडी है तो 10 मिलियन रुपीज उसे कैपिटल मार्केट में काम करने के लिए सबमिट करना पड़ेगा। इन द लास्ट सेगमेंट और इन द लास्ट मार्केट दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां काम करने के लिए अगर कोई ऑप्शन मार्केट में डील करना चाहता है देन 50 मिलियन रुपीज कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बताती है कि 50 मिलियन रुपीज सबमिट करना होगा। और ऑप्शन में अगर डील नहीं करना है, केवल फ्यूचर में डील करना है, देन 30 मिलियन रुपीज ये सबमिट करना होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द मार्केट सेगमेंट्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत